اسپین نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کسی ریاست کے خلاف نہیں، فلسطین کا حق ہے، اس کی آزاد ریاست کے طور پر شناخت ہو۔ فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے۔ ان کا کہنا تھا امن فلسطینیوں کا بنیادی حق، فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ UN قراردادوں کے مطابق ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 146 ہو گئی۔ اسپین کے وزیر اعظم کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد بڑھ کر 146 ہو گئی ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، امن فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے، فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ان کا فلسطینیوں کا امن جو ہے وہ حق ہے۔ لیاری گینگ وار کو بڑا دھچکا، بھتہ کلیکشن نیٹ ورک کے 2 اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی کرداروں کی تلاش میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھتے کا نیٹ ورک انڈونیشیا سے فاروق جدگال آپریٹ کر رہا ہے۔ گرفتار ملزمان نے گینگ کے دیگر ملزمان سے متعلق انکشافات کیے ہیں کہ ملزمان نے کروڑوں روپے 2 اہم کرندوں کے ذریعے ایران حوالہ ہنڈی کرائے۔ ملزمان تاجروں سے بڑے پیمانے پر بھتہ وصولی میں ملوث تھے۔ آپ کو بتائیں، بھتے کا نیٹ ورک انڈونیشیا سے فاروق جدگال آپریٹ کر رہا تھا۔ اہم خبر دیں، لیاری گینگ وار کو بڑا دھچکا ہوا۔ لیاری گینگ وار کے 2 اہم کارندوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی کرداروں کی تلاش میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری۔ بھتہ کلیکشن نیٹ ورک کے 2 اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھتے کا نیٹ ورک انڈونیشیا سے فاروق جدگال آپریٹ کر رہا تھا۔ لیاری گینگ وار کو بڑا دھچکا ہوا۔ بلال علی مزید بتائیں گے۔ بلال، بتائے گا، مرکزی کرداروں کی تلاش میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں، لیاری گینگ وار کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ بھتہ کلیکشن نیٹ ورک کے 2 اہم کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ بھتے کا نیٹ ورک انڈونیشیا سے فاروق جدگال آپریٹ کر رہا تھا۔ عبدالغفور چوہان اور ابوبکر سمد سے پولیس کی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے۔ گینگ کے دیگر ملزمان سے متعلق انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ ملزمان نے کروڑوں پہ 2 اہم کارندوں کے ذریعے ایران حوالہ ہنڈی کرائے۔ ملزمان تاجروں سے بڑے پیمانے پہ بھتہ وصولی میں ملوث تھے۔ لیاری پولیس نے پورے نیٹ ورک کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ آئرن اسٹیل مارکیٹ کے تاجروں کو انڈونیشیا سے واٹس ایپ کے ذریعے دھمکایا گیا تھا۔ ایران میں موجود وسیع علاقوں اور بکری کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ دونوں ملزمان کو بھتے کی رقم سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز تاجر کی موجودگی میں بھتے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزمان بھتے کی وصولی کرنے آئے تھے۔ گرفتار ملزمان میں ابوبکر اور عبدالغفور چوہان شامل ہیں۔ ملزمان 2020 سے وسیع علاقوں گروپ کے نام پر تاجروں سے بھتے کی وصول کر رہے تھے۔ ملزمان اب تاجروں تک 5 کروڑ سے زائد وصول کر چکے ہیں۔ فاروق نامی مطلوب ملزم گرفتار ملزمان کے ساتھی ہے۔ فاروق ملزمان کے ایڈریس وغیرہ دیگر ملزمان فراہم کرتا تھا۔ ملزمان بھتے کی کال اور ڈرانے کی غیر ملکی بہت شکریہ بلال علی آگاہ کرنے کے لیے۔ شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اکبر پورہ اور قریبی دیہات کے شہریوں نے موٹر وے کو احتجاجاً بند کر دیا۔ مظاہرین کہتے ہیں جب تک خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی یقین دہانی نہ کرائے گی، یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اکبر پورہ اور قریبی دیہات کے شہریوں نے موٹر وے کو احتجاجاً بند کر دیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور موٹر وے کو بند کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہری اذیت کا شکار ہیں۔ اس وقت پشاور کے اکبر پورہ قریبی دیہات کے شہریوں نے موٹر وے کو اس وقت احتجاجاً بند کر دیا۔ پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ آپ کو بتائیں، صورتحال بتائیں پشاور کی، جہاں پہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے 27 شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اکبر پورہ اور قریبی دیہات کے شہریوں نے موٹر وے کو احتجاجاً بند کر دیا۔ پشاور میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ سامنے آیا کہ جب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ نہیں کیا جاتا، یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی کے شہری کا صبر کا پیمانہ لبریز، بجلی کی بندش پر شہری اور تاجر سراپا احتجاج۔ نعمان شاپنگ سینٹر کی 6 دن سے بجلی بند، تاجر کہتے ہیں بجلی کی بندش سے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہ الیکٹرک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز اسرار مغیری سے۔
इलेक्ट्रिक की जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ इलाका जात बल्कि जो शहर के मेन इलाके और मेन मार्केटें हैं वहाँ पर भी जो है लोड शेडिंग की जा रही है। ना सिर्फ दिन के औकात में, रात के वक्त में भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। जहाँ बिल भी अदा किए जा रहे हैं वहाँ पर भी एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सदर में। यहाँ पर मार्केट में गुज़िश्ता 6 दिनों से बिजली जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद की गई है इलेक्ट्रिक की जानिब से। यहाँ पर इंतजामिया जो मार्केट के सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो बैठे हुए हैं अपने एसीओ में, बैठे हुए ठंडी मशीनों में, उनको कोई फिक्र नहीं है। हम यहाँ पे गर्मी में मर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ इस बात को देख रहे हैं। हम वहाँ गए, हम एहतजाज कर रहे थे सुबह से, गर्मी की सख्त गर्मी में हमारे 2 बंदे बेहोश भी हुए हैं इसी गर्मी की वजह से। और फिर हम वहाँ गए, बाकायदा उनसे जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। यहाँ के लोकल इंतजामिया, लोकल नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे किसी की तरफ से रब्ता किया गया? रब्ता यहाँ क्या करेंगे, वो उनके सब अपने अपने मफाद हैं, अपने मफाद में लगे हुए हैं। हम तो एहतजाज कर रहे हैं, हम कारोबारी लोग हैं, अपने रोजगार कमा के लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बिजली उनकी मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। ना सिर्फ यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं वो परेशान हैं, उनका कहना है कि हमारा कारोबार इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस बिजली की बंदिश की जो है बंद हो चुका है। या घर के चूल्हे जो हैं वो इसकी वजह से ठंडे पड़ चुके हैं। इंतजामिया इसका नोटिस ले और यहाँ मार्केट की बिजली बहाल कराई जाए, क्योंकि सिर्फ छोटे बड़े सब बड़े लोगों का यहाँ पर कारोबार वाबस्ता है जो इससे परेशान दिखाई देते हैं। जी, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, बिजली की पैदावार 19,881 मेगावाट। पन बिजली ज़राए से 5,600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट 890 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,980 मेगावाट। विंड पावर प्लांट से 780 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सोलर पावर प्लांट से 198, बगास से 133 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3,100 मेगावाट बिजली इस वक्त पैदा हो रही है। मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तेज धूप के साथ साथ गर्म हवाएं चलने लगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मेहनतकश मजदूर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तेज धूप में काम कर रहे हैं। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शहरोज खान से। बिल्कुल, बात करें शहर ओलिया मुल्तान के मौसम के हवाले से, इस वक्त जो है सख्त गर्मी का राज बरकरार है। गर्म हवाएं जो है चल रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का जो तनासब है वो 39% रिकॉर्ड किया गया है। इतनी मुल्तान शहर में सख्त तरीन इस वक्त जो है शदीद किस्म की गर्मी है और मज़दूर जो है वो इस जो है गर्मी में तेज़ धूप में काम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मज़दूर हैं जो कि यहाँ पर काम करें। जी, क्या कहेंगे? इस भाईजान सख्त गर्मी कम करे ने मुआवजा ठीक नहीं है, बहुत घट देने मुआवजा। गर्मी दे लिहाज नाल कम दे लिहाज नाल बहुत घट है मुआवजा। बहुत जड़ा ना महंगाई है, मजदूरी साकू नहीं मिलती उस हिसाब में। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इस दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई है। मज़दूरी जो हम करते हैं तो उसका जो मुतबादल मज़दूरी की रकम है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है। घर का सर्कल कैसे चलाएं, इस गर्मी में, शदीद गर्मी में जो है काम कर रहे हैं। बीमारी का भी ख़तरा है क्योंकि जो मौसमी असरात हैं उससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। तो मज़दूरों का यही हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे बारे में सोचें, जो मज़दूरी है उसको भी बढ़ाएँ ताकि हम अपने बच्चों का जो है आसानी से पेट पाल सकें और अपने घर को जो है चला सकें। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से बार बार ये हिदायत की जा रही है कि शहरी जो है वो घर से जैसे ही बाहर निकलें तो अपने सर को और गर्दन को ढांप के रखें ताकि जो हीट वेव्स के खतरात हैं उससे बच सकें। जी, पीटीएम में पंजाब ने आंदा दिनों में बारिश, गर्द आलूद हवाओं और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। पीटीएम में हुकाम के मुताबिक आज से 1 जून तक पंजाब के बालाई अजला में आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम जनूबी पंजाब में गर्मी की शदीद लहर और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। सूबे भर से मुतल्लिक आपको बताएं कि आज से 1 जून तक पंजाब के बालाई अजला में आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मौसम की सूरत हाल का आपको बताएं तो मुल्क भर में सुबह भर में ज़रिए इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। पीएनडीए की जानिब से ऐसा कहा गया।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जनरल कौंसिल के इजलास से कबल सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। दोपहर 3 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। पार्टी के जनरल कौंसिल का इजलास 4 बजे नए सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग कराएगा। इजलास के लिए मकामी होटल में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, जिसमें मुल्क भर से 3500 अरकान शरीक होंगे। इजलास में कायद नवाज शरीफ, कायम मकाम पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, 4 सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मरकजी, सूबाई, डिविजनल, जिले, तहसील, टाउन सतह के अहदेदार शरीक होंगे। मोहम्मद वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बताएगा, दोपहर 2:30 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास है, जिसमें तकरीबन 3500 के करीब अरकान जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे और पार्टी के सदर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। शो ऑफ हैंड के ज़रिए से वोटिंग का अमल जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह जो है वो इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी जो अफराद हैं उनकी सरबराही करेंगे। जिस हवाले से आपको बताता चलूँ कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो वक्त है वो दोपहर 12 बजे तक का रखा गया था और 1 से 1:30 बजे के करीब तक जो है वो कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ 11 अफराद की जानिब से कागजात नामजदगी जो हैं वो वसूल किए गए थे और आज 12 बजे का वक्त था कि कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जिसके बाद जाँच पड़ताल होने के बाद दोपहर 2:30 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। अगर एक ही उम्मीदवार हुआ तो बिला मुकाबला जो है वो सदर का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब के लिए इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मजबूत उम्मीदवार करार पाए हैं और ऐसा लगता है कि ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनके लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। अगर बात की जाए तैयारियों के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जो सेक्रेटेरिएट है मॉडल टाउन, वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं और वहीं पर जाँच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। दोपहर 4 बजे जो वोटिंग का अमल है वो लाहौर के मुकामी होटल में किया जाएगा, जिसके हवाले से यहाँ पर जो है वो जो इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी इजलास में शरीक होंगे और चीफ ऑर्गेनाइज़र और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस इजलास में शरीक होंगी। 3500 के करीब अरकान इस इजलास में शिरकत करेंगे और इसके हवाले से तैयारियाँ जो हैं वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुतल्लिका जो मौजूदा SPs हैं और इसके अलावा CTO लाहौर हैं उनकी जानिब से भी दौरा किया गया और मुतल्लिका जो ट्रैफिक के अमूर हैं उनको भी देखा गया और इसके साथ साथ सिक्योरिटी अमूर का भी जायज़ा लिया जा रहा है। जी सही। अच्छा वसीम, ये भी बताएगा नून लीग के जो नाराज अरकान है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल है, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, कि आज वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया था कि तमाम तर नाराज़ अरकान जो हैं वो भी कागजात नामजदगी अगर जमा करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। चारों सूबों के जो अरकान हैं उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए दावत दी गई है, जिसमें 11 अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए थे और अभी तक जो है वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल जो है वो शुरू होने का वक्त कुछ देर बाद शुरू होगा। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि नाराज़ अरकान की भी शिरकत जो है वो मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि ऐसा लगता है कि अभी तक जो है वो नाराज़ अरकान के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं और उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार की नहली HEC का बजट 65 बिलियन रुपए से कम करके 25 बिलियन रुपए कर दिया गया। HEC को मुल्क भर की जामियात से फेडरल की जामियात तक महदूद कर दिया गया। आपको बताएं, सरका नवीसी में मुलव्विस डॉक्टर मुख्तार अहमद HEC का बजट बढ़ाने के बजाय अपनी एक्सटेंशन में मसरूफ सूबाई जामियात के वाइस चांसलर भी डॉक्टर मुख्तार की लीडरशिप पर कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके। वाइस चांसलर ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए कि चेयरमैन HEC जामियात के हक में बोलने की बजाय उनकी खामियां उजागर करते हैं। चेयरमैन HEC को वफाकी वजीर का दर्जा देने का मकसद जामियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होता है। चेयरमैन HEC अपनी जामियात के फंड्स में इजाफा करवाने में नाकाम रहा। नदीम चौधरी मजीद बताएंगे। नदीम बताएगा, डॉक्टर मुख्तार अहमद चौधरी के खिलाफ मजीद शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार की नाअहली के बायस HEC का बजट 65 बिलियन रुपए से कम करके 25 बिलियन रुपए कर दिया गया है। HEC मुल्क की भर की जामियात से फेडरल की जामियात तक महदूद कर दिया गया। सरकार नवीसी में मुलव्वस डॉक्टर मुख्तार अहमद HEC का बजट बढ़ाने की बजाय अपनी एक्सटेंशन में मसरूफ हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि सूबाई जामियात के वाइस चांसलर्स भी डॉक्टर मुख्तार की लीडरशिप पर कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। चेयरमैन HEC की जामियात के हक में बोलने की बजाय उनकी खामियां उजागर करते हैं, जिसके बायस सूबाई जो जामियात हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई।
चेयरमैन एचईसी को जब वफाकी वजीर का दर्जा देने का मकसद जामियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि चेयरमैन एचईसी फंड में इजाफा करवाने में नाकाम रहे। चेयरमैन एचईसी सियासी तल्कात को फंड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय अपनी तौसीफ में मसरूफ थी। सही, बहुत शुक्रिया नदीम। मुजफ्फराबाद में रियासत का आईनी इदारा मुतसिब आला सियासत की भेंट चढ़ गया। बैन अक़वामी फोरम्स पर रियासत की नुमाइंदगी करने वाले इदारे के चेयरमैन का 3 माह से तकर्रुर न हो सका। मुतसिब आला रियासत के अवाम को मुफ्त इंसाफ फराहम करने वाला वाहिद इदारा है। अब तक ये इदारा हज़ारों अफराद को मुफ्त इंसाफ की फराहमी कर चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ फवाद अब्बासी से। जी फवाद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रियासत का आईनी इदारा जो सियासत की भीड़ चढ़ गया है, बैन अक़वामी फोरम पर रियासत की नुमाइंदगी करने वाले इदारे चेयरमैन का तकर्रुर 3 माह से न हो सका। हुकूमत की जानिब से आईनी इदारे को ख़त्म करने की जो कोशिश है वो भी जारी है। दूसरी तरफ मुतसिब आला का जो इदारा है रियासत की आवाम को इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने का बायस बन सकता है। ज़राए के मुताबिक मुतसिब आला रियासत की आवाम को मुफ्त इंसाफ की पूरी फराहमी करने वाला वह इदारा है जो बैन अक़वामी फोरम पर तस्लीम शुदा मुतसिब बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस में रियासती झंडे के साथ रियासत की नुमाइंदगी करता आ रहा है। यहाँ दीगर ममालिक के ओहदेदारान जिम्मेदारान मौजूद होते हैं। वहाँ मुतसिब का इदारा 80 से ज़ायद मुलाजमीन के साथ काम कर रहा है, जिसमें 30 से ज़ायद जो जरीदा और बाकी गैर जरीदा दर्जा हरम के मुलाजमीन काम कर रहे हैं। मुतसिब आला का इदारा सिर्फ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जब वो काम कर रहा है, गुज़श्ता 1500 से ज़ायद जो शिकायत हैं वो भी यकसू की हैं। 1992 में उस वक्त के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए कायम किया गया था और हकीकी मानू में आज तक ये इदारा अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देता चला आ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया फवाद अब्बासी। कम खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ारत दाखिला की लाइलमी या दानिस्ता गलती, कौमी असम्बली में हाउसिंग सोसाइटी के एक फेज़ के मंजूर शुदा लेआउट प्लान को गैर मंजूर शुदा करार दे डाला। CBR हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 2 के मंजूर शुदा लेआउट प्लान की दस्तावेज़ात ABN न्यूज़ को मौसूल। गुज़िश्ता साल CBR फेज़ 2 का लेआउट प्लान मंजूर होने के बावजूद गैर मंजूर शुदा की फहरिस्त में डाल दिया गया। गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज़ के मुतालिक सवाल के जवाब में CBR के फेज़ 2 का नाम भी शामिल कर दिया गया। आपको बताएं, CBR हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से तो फेज़ 2 का लेआउट प्लान मंजूर होने के बावजूद गैर मंजूर शुदा लिस्ट में डाल दिया गया। ज़मान मुग़ल मज़ीद बताएंगे। ज़मान, बताइएगा, वज़ारत दाखिला की लाइलमी है या दानिस्ता गलती है? ये कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में वज़ारत दाखिला ने ये जवाब दिया था। सवाल ये था कि बताया जाए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कौन कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो रजिस्टर्ड है और कौन सी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके लेआउट प्लान मंजूर है और जिनके लेआउट प्लान मंजूर नहीं है। तो उसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से जो कौमी असम्बली में जवाब जमा करवाया गया, उसमें CBR जो है, CBR का नाम भी गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज में डाल दिया गया था और उनकी तरफ से जवाब शामिल करने के बाद CBR टाउन की जो इंतजामिया है वो अपना सारा रिकॉर्ड लेके सामने आ गई और ABN को तमाम तर दस्तावेजात भी मौसूल हो गई है, जिसमें CBR का फेज़ 2 जो है उसका लेआउट प्लान बाकायदा तौर पर मंजूर है और दोनों इदारों से, पिंडी इस्लामाबाद से उसके बाकायदा अप्रूवल्स हुई हुई है और उसके तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जो है ABN को मौसूल हो गई है। और CBR इंतजामिया का कहना है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि हम मेरिट के ऊपर काम करें और कानून के मुताबिक चले। हमने कभी कोई इलीगल काम नहीं किया और हमें नहीं अंदाजा कि हमारा नाम जो है बगैर कानूनी लिस्ट में कैसे डाला गया है। तब उन्होंने ये कहा कि हमारी चूंकि तमाम तर मंजूरीज मौजूद हैं और इसी की वजह से तमाम यूटिलिटीज जो फैसिलिटीज हैं वो भी हमें दी जा रही हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़मान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने रोटी और दीगर अशिया खुर्दनोश के निर्ख में कमी पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल, तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को आम आदमी से करीबी रब्ता रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अशिया खुर्दनोश के निर्ख मज़ीद नीचे आएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वफाकी हुकूमत को ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर वगैरह पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की तजवीज़ पेश की है। कंट्रोल और दीगर उमूर के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में हाइब्रिड बसें ला रहे हैं और नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो निर्ख नीचे गिरते हैं। कुछ लोग कहते थे कि हम आलू प्याज के लिए हुकूमत में नहीं आए। मरीम नवाज ने कहा कि 2 से 4 मरले के प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्जे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बेघर लोगों को घर बनाकर देंगे। देहात में प्लॉट देने का जायज़ा ले रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी के लिए चीन समेत दीगर ममालिक से राब्ते कर रहे हैं।
रेलवे की जानिब से कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। एक ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। कराची से लाहौर की ट्रेन में इकोनॉमी क्लास और एसी की कोचेस भी लगाई जाएंगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए चलाई जाएगी। आपको बताएं, इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। बिलाल, बताएगा ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, रेलवे की जानिब से कराची से 2 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। ईद उल अजहा से कबल 2 ईद स्पेशल ट्रेन रवाना होंगी। जुल्हज्जा का चांद नजर आने के बाद ईद स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जाएगा। एक ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। कराची से लाहौर की ट्रेन में इकोनॉमिक क्लास और एसी की चलाई की जाएगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर चलाई जाएगी। कराची से पेशावर की ईद स्पेशल ट्रेन में तमाम कोचेज इकोनॉमिक क्लास की होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल। पाकिस्तान रेलवे के प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट की 4 साल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट, जहां अहम इंकशाफात रिपोर्ट में 12,49 करोड़ 79 लाख की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कराची में निजी फिटनेस कंपनी शिप्स का लीज मुआहदा खत्म होने के बावजूद दोबारा नीलामी न होने से 1 अरब 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे की 3 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 2617 एकड़ अराजी पर तजावजात कायम हैं। मुल्तान में 1937, रावलपिंडी 87.13 और कोयटा में 593 एकड़ अराजी पर तजावजात मौजूद हैं। जबकि कराची और हैदराबाद में रेलवे की 2 अरब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की अराजी पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तलिफ शहरों में सरकारी महकमों से 22 करोड़ 12 लाख रुपए के वाजबात ताहाल वसूल नहीं किए गए। सक्खर और रोहड़ी में वापडा के जिम्मा 7 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा के वाजबात हैं। मुल्तान में महकमा खुराक के जिम्मा अराजी लीज कीमत में 9 करोड़ 63 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ब्रेड की कीमतों में भी नुमाया कमी कर दी गई है। डीसी लाहौर के मुताबिक बड़ी 750 ग्राम की ब्रेड के नर्ख ज़्यादा से ज़्यादा 180 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। छोटी 400 ग्राम तक की ब्रेड की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 95 रुपये होगी। ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपए की कमी की गई। आपको बताएं, रोटी के बाद अब ब्रेड की कीमतें भी कम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम इक़दाम, मोहम्मद वसीम इस पर बताएंगे। वसीम, बताएगा रोटी के बाद अब ब्रेड की कीमतों में भी कमी की गई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब रोटी रिलीफ प्रोग्राम का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है, जबकि रिलीफ का सिलसिला अभी इस वक्त जारी है, जिसके मुताबिक ब्रेड की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है, जिसके तहत बड़ी ब्रेड जो है वो 750 ग्राम की, उसके ज्यादा से ज्यादा जो रेट है वो 180 रुपए मुकर्रर किए गए। जबकि डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना है कि छोटी ब्रेड जो 400 ग्राम तक की है उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 95 रुपए होगी और ब्रेड की कीमतों पर फिलफोल अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा डीसी लाहौर का ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कीमत के तनासुब से रिलीफ को यकीनी बनाने के लिए हदायत भी जारी की है और डीसी लाहौर ने तमाम तर जो जिले अफसरान हैं उनको सख्ती से अमल दरामद कराने की भी हदायत जारी कर दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम आगाह करने के लिए। एमक्यू पाकिस्तान ने भी पंजाब असम्बली में पास होने वाले हद तक इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। एमक्यू पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असम्बली में पास होने वाले हद के इज्जत बिल पर मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में न लेने से बाती दमाती और तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले रहे हैं। एमक्यू पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशाफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। इसी हवाले से पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान को जायज़ मुतालबात की हिमायत का यकीन दिलाया। खानपुर में कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तलाफ उमर अयूब खान का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर बुलडोजर के जरिए चढ़ाई की गई। उनका मजीद कहना था, बानी तहरीक इंसाफ ने 2 साल कबल पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक का आगाज किया। वो तहरीक फॉर्म 47 की हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगी। उमर अयूब ने मजीद कहा, इलेक्शन में हमारी 180 सीटों पर डाका डाला गया, फतह हमारी होगी। इलेक्शन में हुकूमती सख्तियों के बावजूद हल्के की अवाम ने मुझे भारी मैंडेट से अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। हल्के की अवाम की खिदमत करने में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। अवाम के काम मेरिट पर होंगे। राना सनाउल्ला जो है वो कहते हैं कि पार्टी की आदत का इंतखाब कल तकमील को पहुंचेगा। पार्टी सदर के लिए 11 कागजात नामजदगी जमा हुए। नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं। नवाज शरीफ के जिन बयानात की कमी महसूस हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। बानी पीटीआई को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। बानी पीटीआई मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेंगे। आज इस वक्त में कोई 11 के करीब जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो इशू हुए हैं
कल सुबह यानी 28 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो वसूल किए जाएंगे। जिन तकारीर और जिन बयानात की आप कमी महसूस कर रहे हैं वो ऐसा ऐसा कमी पूरी हो। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मारकला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग मार्कला हिल में ट्रेल 3 के एरिया में लगी। सीडीए और वाइल्ड लाइफ की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि मारकला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी है। मारकला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ ज़मान मुगल से। ज़मान, बताइएगा, एक बार फिर आग भड़क उठी। जी बिल्कुल, ये ट्रेल 3 का एरिया है जहाँ पे आज फिर आग जो है वो भड़क उठी है और वाइल्ड लाइफ और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनकी कोशिश है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाए। गुज़श्ता रोज चूंकि 3 मकामात पर आग लगी थी और दिन भर जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है वो कोशिश करते रहे और इवन हेलीकॉप्टर के जरिए जो पानी का छिड़काव किया जाता रहा और शाम तक किसी न किसी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन आज सुबह जो है वो दोबारा ट्रेल 3 के करीब जो है वो आग लग चुकी है और आग जो है अभी तक बढ़ती जा रही है और दोनों इदारों के जो जवान हैं उनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से आग के ऊपर काबू पाया जाए और आग को बुझाया जाए, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। जी, अभी तक कामयाबी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल। तहरीक इंसाफ रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। ये जिस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। बानी PTI ने पुरअमन एहतजाज की कॉल देनी है। अवाम के समंदर के सामने ये खड़े नहीं हो सकेंगे। 9 मई के किसी एहतजाज में शामिल नहीं था। खौफ फैलाने का असर उल्टा पड़ गया। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। 9 मई में लाहौर में नहीं था, किसी भी एहतजाजी रैली में मैंने शिरकत नहीं की थी। इस तरह अगर मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता, ये प्रेशर कुकर को आप मजीद स्ट्रेस के अंदर लेके जा रहे हैं और बार बार हमने जितनी अभी तक वार्निंग्स दी थी मुल्क की जमहूरियत के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से, वो ठीक साबित हुई हैं। अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन बच गया है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। भी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम मान लें इस फॉर्म 47 की हुकूमत को अपने क्लेम से पीछे हट जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाक चीन दोतरफा मुआशी ताल्लुकात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत पाक चीन ताउन से मुतल्लिक इजलास हुआ है और इजलास में मज़ीद पेशरफ़्त से मुतल्लिक जायज़ा लिया गया है। पाक चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां है, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। मज़ीद बात करेंगे जावेद शहजाद से। जावेद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाकिस्तान चीन दो तरफा माशी ताल्लुकात के हवाले से तजवीज़ पेश की गई हैं। इजलास में प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि चीन पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी इंडस्ट्री, खुसूसन चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में संद लगाने की हम दावत देते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तरजीही बुनियादों पर ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई की शोबों में तावन बढ़ाने और चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफे का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की है और आज के इस इजलास में पाक चीन के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जावेद शहजाद इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए मशरूबात की दुकानों का रुख किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ शेख रशीद। जी शेख रशीद, बताएगा। जी, लाहौर शहर को गर्मी ने अपनी लपेट में ले रखा है। गर्मी की शिद्दत और जिस तरह सूरज आग बरसा रहा है उससे बचने के लिए शहरियों ने मशरूबात पीने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का, मुख्तलिफ जगहों का जो है वो रुख कर लिया। इस वक्त एक शरबत की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो शहरी धड़ाधड़ शरबत पी रही है और शरबत पीकर अपनी जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक की बजाय कई गिलास पिए जा रहे हैं। साथ दीगर मशरूबात जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स है, जिसमें स्कंजबीन है और दीगर जो मशरूबात हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप दोनों तरफ देखें तो मशरूबात की खासी दुकानें हैं जहाँ पर सैकड़ों शहरी जो हैं वो अपनी गर्मी मिटाने के लिए मशरूबात का, पानी का और दीगर जो चीज़ें हैं जिनसे गर्मी ख़त्म हो सकती है या उसमें कमी हो सकती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी